رانو چڑیا کے 2 بچے تھے۔ رانو چڑیا صبح ہی صبح اپنے بچوں سے کہتی ہے، ککو اور گڑیا آپ نے شور نہیں کرنا، میں دانا لینے جا رہی ہوں۔ یہ لو گڑیا، یہ آپ کا دانا اور یہ دانا ککو کا۔ مما میں تو بالکل بھی شور نہیں کرتی، نہ ہی کسی کو تنگ کرتی ہوں، یہ ککو ہی ہے، اتنی چو 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 کرتا ہے کہ میرے بھی سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ارے نہیں مما، میں تو بالکل بھی شور نہیں کرتا، شور کرتی ہے تو یہ گڑیا سارا دن ٹیوں ٹیوں لگا کے بیٹھی رہتی ہے۔ نہیں مما، میں تو بالکل نہیں کرتی۔ اچھا بس بس، اب آپس میں لڑنا بند کرو، آپ کی لڑائی سے بھی شور پیدا ہو رہا ہے۔ مما آپ ککو کو سمجھاتے ہوئے جائیں، یہ سارے کام خود کرتا ہے، بعد میں الزام مجھے دے دیتا ہے۔ ککو اب چپ کر کے بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کوئی شور نہیں کرنا، اگر کوئی بھی شرارت کرو گے تو بعد میں آ کر بہت بری طرح پیٹوں گی میں آپ کو۔ ککو غصے سے گڑیا کو دیکھتا ہے اور پھر گڑیا دوسری طرف منہ کر لیتی ہے۔ رانو دانا لینے کے لیے اپنے گھر سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی رانو جاتی ہے، پیچھے سے ککو گڑیا سے کہتا ہے، بولو بولو، مما کو میری شکایت کرو گی؟ لو تمہارا دانا میں نے چھین لیا، اب یہ دانا میں کھاؤں گا۔ ککو بھائی میرا دانا واپس کرو، آپ کو مما نے آپ کا دانا دیا ہے نا، آپ مجھے میرا واپس کر دو۔ رو رو، تھوڑا اور اونچا رو، چلو چلو میں دانا کھا لیتا ہوں تب تک۔ ککو کو تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ککو گڑیا کا دانا اور اپنا دانا دونوں چٹ کر جاتا ہے۔ میں بتاؤں گی، میں مما کو ساری بات بتاؤں گی، دیکھ لینا، پھر یہ نہیں کہنا مما کو کہ گڑیا شیطانی کرتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو تم کو کچھ بولا بھی نہیں۔ ہاں ہاں تم تو بہت شریف ہو نا، چلو جب تک مما آتی ہے تب تک میں سو لیتا ہوں۔ ککو جیسے ہی گھونسلے میں لیٹتا ہے، گڑیا ککو کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ، یہ گڑیا میرے اوپر چڑھ گئی، میرا تو سانس نہیں آ رہا۔ ادھر گوری اور کالو اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ کالو بھتیجی، یہ میرے سر پہ آوازیں آ رہی ہیں، میرا سر پھٹنے کو ہے، دیکھو اس چھوٹی چڑیا کے بچے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ گوری تو میں کیا کروں، اس کے بچوں کو چپ کروانا یا لڑتے ہوئے کو چھڑانا میری ذمہ داری ہے کیا؟ کالو میری نیند خراب ہو رہی ہے، جلدی سے جاؤ، یہ لو ڈنڈا اور چھوٹے بچوں کو مار مار کر بندر بنا دو تم۔ گوری یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، دیکھو میرا سر بھی پھٹا جا رہا ہے ان کی اس چونچوں سے۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ، گڑیا میرے اوپر چڑھ گئی ہے۔ کالو تم سے تو یہ کام ہوگا ہی نہیں، میں خود جاتی ہوں، ان چھوٹے بچوں کو آج مار کر ہی آؤں گی۔ ارے روکو روکو، کہیں سچ میں نہ مار دو تم، ارے پولیس پکڑ کر لے جائے گی، میں اپنی زبان میں بچوں کو دھمکا کر آتا ہوں۔ ڈنڈا لیے کالو کو وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ سیدھا چڑیا کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجاتا ہے۔ کھولو کھولو، جلدی جلدی دروازہ کھولو۔ مگر گڑیا ککو کے اوپر چڑھ کے بیٹھی تھی، نہ ککو دروازہ کھول سکتا تھا اور نہ ہی گڑیا خود آتی تھی دروازہ کھولنے کے لیے۔ ارے میں تو بجا بجا کے تھک گیا، نہ جانے کون سے بہرے پکشی رہتے ہیں اندر، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ کالو کوا غصے میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ گوری اتنا دروازہ بجایا، بچے تھے کہ دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کالو پتی جی توڑ دینا تھا نا وہ دروازہ، ایک تو تم اتنے کمزور ہو، بات بات پر پولیس سے ڈرتے ہو تم۔ گوری میں کیا کروں، جو بھی کرتا ہوں الٹا میرے پہ پڑتا ہے، اگر میں پھنس گیا تو جیل میں تو جائے گی، میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر میں جیل جاؤں گی تو کون سا حج کرنے جائے گا، تو بھی میرا پتی ہے، جہاں میں جاؤں گی تو بھی وہیں جائے گا، اس لیے تو ڈرتا ہوں، کچھ ایسا ویسا نہیں کرتا اور نہ ہی تم کو کرنے دیتا ہوں، تبھی تم نے بھی کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا اور میں نے بھی۔ گڑیا تو جیسے ککو سے پرانے بدلے بھی ساتھ میں لے رہی تھی۔ گڑیا گڑیا ہٹ جاؤ، گڑیا میرا سانس نہیں آ رہا، چھوڑ دو، معاف کر دو، میں تم کو دانا ڈھونڈ کر لا دیتا ہوں۔ نہیں چھوڑوں گی نہیں چھوڑوں گی، تمہارے اوپر سے نہیں اٹھوں گی جب تک مما نہیں آ جاتی، دیکھو تم نے میرا دانا چرایا اور تو اور تم مجھے مارنے بھی لگے تھے، اب اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اتنا تو میں کروں گی۔
गौरी, घर से कहीं दूर निकल चलो, यहाँ पर हमारा रहना मुश्किल है। उन बच्चों की चीख चहोड़े की आवाज तो कम हो ही नहीं रही। हाँ कालूपति जी, यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। गुस्से में गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। हाँ कालू, देखो यहाँ कितनी शांति है। वहाँ उस छोटी चिड़िया के बच्चों ने चों चों लगा करके हमारे दिमाग के कीड़े जगा दिए। मैं कहता हूँ एक बार मिल जाए वो बच्चे, एक बार दरवाजा खोल ले, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। कालू, क्या तुम्हारी चोंच इतनी मजबूत है कि तुम उनका दरवाजा तोड़ सको? ना ना, चोंच टूट जाएगी, फिर कभी भी कुछ खा नहीं सकूंगा। ये चोंच के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। तभी गौरी को सामने से एक जालिम चील जाते दिखाई देती है। कालू, सामने देखो, वो चील। हाँ गौरी, ये तो माही चील है, इसको कुछ बोलोगी या तुम्हें ही खा जाएगी? ना ना, हम इसको शिकार ढूंढ कर देते हैं, जैसे कि चिड़िया के बच्चे जाकर खाएगी। अरे हमारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा, ना होंगे बच्चे, ना करेंगे चों चों। और जब बच्चे मर जाएंगे तो उनकी माँ जो चों चों करेगी वो क्या होगा? कालू यही बातें कर ही रहा था कि तभी ऊपर से रानो चिड़िया गुजरती है। अरे ये तो मेरे बच्चों की बात कर रहे हैं, मुझे छुपकर सुनना होगा। रानो झाड़ियों के पीछे बैठकर गौरी और कालू की आवाजें सुन लेती है। कालूपति जी, कुछ भी नहीं होगा, ये चिड़िया रोएगी, 1 दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रोएगी। अरे बच्चों को भूल जाएगी, फिर जाकर अंडे देगी पूरे 3 या 4 साल के बाद। तब तक हम मजे उड़ा लेंगे। हमारी नींद खराब करते हैं ये बच्चे। चील दी को पता दो, सारे बच्चे मिनटों में चट कर जाएगी। हाँ गौरी, बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो, माही चील का जंगल थोड़ा सा दूर है, वहाँ तक जाते हैं। शाम से पहले पहले माही चील को लेकर आ जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं। फिर गौरी और कालू माही चील को लेने के लिए उसके पहाड़ों वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये मेरे बच्चों को मारने की उपाय बना रहे हैं। गौरी और कालू, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। रानो अपने घर जाती है। गुड़िया, गलत बात है, आप क्यों अपने भाई कुक्कू के ऊपर चढ़कर बैठी हो? मम्मा, कुक्कू भाई ने मेरा दाना खाया है, कुक्कू भाई ने मुझे मारा है, ये बहुत शैतानी करते हैं। कुक्कू, मैंने आपको मना भी किया था, आपने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा, आज गुड़िया ने बहुत बुरी सजा दी है। जो मैंने इसका दाना खाया वो सारा दाना निकाल दिया इसने मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के। अब आया ना मजा, अब करोगे मेरे साथ शैतानी? अरे नहीं नहीं, अब तो कभी भी नहीं करूँगा। कुक्कू और गुड़िया, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ, हमें इस घर से जल्दी जाना होगा। रानो अपने बच्चों को लेकर अपने घर से निकलती है। रानो के पेड़ के खोखड़ में एक बड़ा सांप भी रहता था। रानो की उस सांप से बहुत अच्छी दोस्ती थी। नाग जी, वो है ना हमारे पड़ोसी गौरी और कालू, उनको मेरे बच्चों की आवाज से दिक्कत होती है, वो माही चील को शिकार के लिए बुलाने गए हैं। अरे अगर तुम्हारे बच्चों को वो कुछ कह सकते हैं, फिर तो वो किसी दिन मुझे भी मार सकते हैं। अरे नहीं नहीं नाग जी, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अरे बोलो बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? नाग जी, आप जाकर मेरे घर में रहना शुरू कीजिए, अपने पूरे परिवार को लेकर जाइए। जैसे ही माही चील अंदर आएगी और फिर आपको बैठा हुआ देखेगी, फिर वो गौरी और कालू को नहीं छोड़ेगी। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। अच्छा ठीक है, मैं सारा काम संभाल लूंगा, तुम बस आराम से जाओ और हमेशा खुश रहो। रानो नाग का धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। रानो अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। गौरी और कालू भी माही चील के आशियाने पर पहुँच चुके थे। चील दी, कैसी हो? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हमने सोचा क्यों न जाकर अपनी चील चाची से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ चील चाची, तुमको इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, ना जाने कितना याद करते हो। सुबह से इतना 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 लगाई रखी है, एक डंडा मारूंगी, सारे तुम्हारे इतने निकाल दूंगी। चील दी, हम तुम्हारा भला चाहते हैं और फिर तुम हमको मारोगी?
देखो चील दी, ये बात अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, मैं सब अच्छे से जानती हूँ, क्या अच्छा क्या बुरा। अब जल्दी भौंको, क्या करने आए हो मेरे घोंसले में? चील दी, हमारे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है। हाँ, रानो चिड़िया नाम है उसका। बड़ी दयालु और अक्लमंद चिड़िया है, तुम्हारी तरह पागल नहीं है वो। चील दी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। हम तुम्हारे लिए छोटे छोटे पक्षियों का मांस ढूंढ कर लाए हैं और फिर तुम हमें ही पागल बोलती हो। बताओ बताओ, क्या ढूंढ कर लाए हो मेरे लिए? चील दी, हमारे पड़ोस में चिड़िया रहती है, उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन चो 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 करते हैं। ना गौरी को नींद आती है और ना मुझे। क्या तुम उन बच्चों को खा सकती हो? खाने के लिए तो मैं तुम लोगों को भी खा सकती हूँ। अरे खाने में क्या दिक्कत है? बताओ, कब खाना है उन बच्चों को? चील दी, अभी अभी चलो हमारे साथ, उन बच्चों को खा जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी चोंच में दोनों एक साथ आ जाएंगे। चील ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। चलो चलो, अभी चलते हैं। गौरी और कालू माही चील को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जल्द ही वो रानो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। चील दी, यही वो घर है, इसमें दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अपनी चोंच से दरवाजा तोड़ डालो और फिर दोनों बच्चों को खा जाओ मजे से तुम। हाँ हाँ चील दी, हमारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चाहे एक खाओ या फिर दोनों एक साथ खाओ, बस ऐसा करो, एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। नरम मांस की खुशी में चील अपनी मजबूत चोंच से दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देती है। चील बहुत जल्दी दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। घर के अंदर में तो बहुत सारे नाग के बच्चे, यही परिवार बैठा हुआ था। गौरी और कालू, तुम लोगों ने तो बोला था कि घर में छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। ये तो नाग का परिवार रहता है इस घर में। चील दी, हमें क्या पता, तुम्हारे आने से पहले किसी नाग ने बच्चे खा लिए होंगे चिड़िया के। हाँ हाँ चील दी, हम तो बच्चों की चोंचों से थक कर घर से बाहर निकले थे, हमें क्या पता कि घर में बच्चे कोई और ले गया। देखो, पहले तो तुम मुकम्मल जायजा ले लेते, फिर ही मेरे पास आते। अब मैं भूख से मरती हूँ, मेरी भूख का इलाज तुम लोगों से ही होगा। चील दी, हमें कुछ मत कहना, देखो हमसे दूर रहो, हमारे पास नहीं आना। गौरी और कालू जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं, चील दोनों को पकड़ लेती है। पहले तो दोनों को खूब मारती है, फिर बाद में पहले गौरी को खाती है और फिर कालू को खा जाती है। अपना पेट भर के लंबी डकारें लेकर चील वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद ही उसी में गिरते हैं। गौरी, मेरी पत्नी तो कितनी सुंदर है, जंगल की सारी कवियों से सुंदर कवि मिली है मुझे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाय कालूपति जी, कैसी कैसी बातें करते हो, मुझे तो शर्म ही आ गई। गौरी शर्माते हुए दूसरी तरफ मुंह करती है। गौरी के पास एक छोटा सा पर्स था, वो जैसे ही दूसरी तरफ मुंह करती है, अपना पर्स भी आगे की तरफ कर लेती है। गौरी, मेरी तरफ देखो तो सही, अपने पति से पूरी तरह तारीफ तो सुन लो अपनी। गौरी फिर से कालू की तरफ मुंह करती तो अपना पर्स जल्दी से अपने पास करती। गौरी, तुम्हारे पर्स में क्या है, जिस तरफ मुंह करती हो उसी तरफ अपना पर्स भी कर लेती हो, पर्स को छोड़ती नहीं तुम अकेला। कालू जी, और तो कुछ नहीं, मेरा एक सोने का हार है, मैं सोने के हार से बहुत प्यार करती हूँ, अगर ये गुम हो गया मैं तो मर जाऊंगी। गौरी, कैसी बातें करती हो, बिल्कुल भी ना सोचो ये बात कि तुम्हारे घर से तुम्हारा कुछ गुम हो जाएगा, ये कालू का घर है, यहाँ से कुछ भी गुम नहीं होता। फिर कालू अपनी पत्नी गौरी से खूब बातें करता है। रात हो जाती है, गौरी भी सो गई थी और फिर कालू भी। रात के 12 बजे गौरी की आंख खुलती है। मेरा बीड़ी पीने का बड़ा दिल कर रहा है, ये कालू मनहूस कहीं का हर समय ही मेरे साथ रहता है, बीड़ी पीने नहीं देता मुझे। गौरी को रात भर नींद नहीं आती, सुबह हो जाती है। कालू
कॉलूपति जी, मेरा जंगल घूमने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ चलो, मैं अभी तुम्हें सारा जंगल घुमा कर आता हूँ। सागर का किनारा, पहाड़ों वाली दिशा, फलों की दिशा, सब कुछ दिखा कर आऊंगा। ना ना कॉलूपति जी, मैं खुद जाना चाहती हूँ। खुद ही जंगल के पक्षियों से मिलूंगी, सारे रास्ते खुद ही याद करूंगी। गौरी, अगर तुम गुम हो गई तो मेरा क्या बनेगा? ना ना, गुम होने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता है बरगद के पेड़ पर मेरे पति का घर है, उसका नाम कालू है। जिससे भी पूछूंगी बता देगा मुझे। अच्छा गौरी, जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी। गौरी अपना वही पर्स लेकर वहां से चली जाती है। फिर से पर्स ले गई। लगता है इस पर्स में इसका दिल धड़कता है, बिना जाने क्यों पीछे है इस पर्स के। कालू थका हुआ था। कालू अपने घोंसले में फिर से सो जाता है। गौरी घने जंगल में जाती है। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बीड़ी सुलगाती है और फिर पीना शुरू कर देती है। हाय, कितना मजा आता है बीड़ी पीने में। मेरा मन करता है बीड़ी पीती जाऊं, पीती जाऊं, पीती जाऊं। ना जाने कब कब कालू बीड़ी का आदी बनेगा, फिर मैं उसके सामने बैठकर बीड़ी पीऊंगी। गौरी बीड़ी पीने में मशगूल थी, तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। माँ, माँ क्यों फोन कर रही है मुझे? गौरी कॉल अटेंड करती है। अरे माँ, तुझे आराम नहीं आता क्या? अरे बीड़ी पी रही हूँ, थोड़ी सी पीने दे। अरे गौरी, तूने ससुराल में भी बीड़ी नहीं छोड़ी। बताओ कौन लेकर दिया था तुझे बीड़ी? माँ, लेकर किसने देनी है? अपने पर्स भर कर लाई थी बीड़ी के, वही खत्म कर रही हूँ मैं। अरे गौरी, कालू ने पकड़ लिया तो अगले दिन ही तुम्हें छोड़ देगा। अरे मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ, तुझे पता भी ना चले कि तुम्हारा मायका किधर है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अरे मर के भी आऊंगी ना तो कभी भी मेरी चिता को घर नहीं जलाएगी। गौरी की माँ फोन रख देती है। ना जाने ये लड़की कब सीधी होगी, इसने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। गौरी बीड़ी पीने में मशगूल थी, तभी वहीं से कबूतर गुजरता है। अरे ये तो कालू की पत्नी है, अगले दिन ही ब्याह कर लाया है। ये तो बीड़ी पी रही है, अब क्या बनेगा? कालू तो एक नशाई कवि को पकड़ कर लाया है। गौरी आराम से बीड़ी खत्म करती है, अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। कबूतर ये बात जाकर चिड़िया को बताता है। अरे कबूतर भैया, आपको गलत फहमी हुई होगी, वो कोई और कवि होगी। गौरी तो ऐसा नहीं कर सकती, गौरी अच्छी और सुलझी हुई कवि है। रानो, मैं सच बात कर रहा हूँ, वो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी ही पी रही थी। अच्छा ठीक है, अगर पीती होगी तो फिर कोई और पक्षी भी देख लेगा, उसको पकड़ लेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गौरी एक दिन अपना पर्स खोलती है। अरे ये क्या, मेरी तो सारी बीड़ी खत्म हो गई है। मैं बिना सिगरेट के कैसे जीऊंगी अब, और मुझे सिगरेट लेकर कौन देगा? गौरी कालू के पैसे चोरी करती है। पैसे लेकर गौरी घर के बाहर चली जाती है। अगर मैं दुकान पर जाऊंगी तो फिर वो कालू को बता देगा कि तुम्हारी पत्नी बीड़ी लेने आई थी। ऐसा करती हूँ, किसी बच्चे को भेज देती हूँ। गौरी नदी किनारे जाती है। वहाँ पर कुक्कू बैठा हुआ था। छोटी चिड़िया के बेटे कुक्कू, बेटा क्या कर रहे हो? गौरी आंटी, मैं यहाँ पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, सामने वाली दुकान से जाओ और बोलो गौरी आंटी के मामा जी आए हैं, उन्होंने बीड़ी पीनी है, 10 रुपए की बीड़ी दे दे। गौरी आंटी, नशे वाली चीजें यहाँ के पक्षी छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देते, इसीलिए आप खुद ही चले जाओ। अरे जाओ जाओ बेटा, बोल देना कि गौरी आंटी के मामा जी ने पीनी है। कुक्कू वो 10 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। तोते की किराना की दुकान थी, जहाँ से बीड़ी भी मिलती थी। तोते अंकल, ये ले 10 रुपए, मुझे बीड़ी दे दे। अरे कुक्कू बेटा, तुमने बीड़ी का क्या करना है? अभी बताता हूँ तुम्हारी माँ को कि तुम बीड़ी पीने लगे हो। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं नहीं, वो है ना गौरी आंटी, उनके मामा जी ने पीनी है। अरे मैं कोई पागल हूँ क्या कि छोटे बच्चे को बीड़ी दे दूं? बिल्कुल नहीं, अभी कालू को फोन लगाता हूँ, कालू खुद ही आएगा और बीड़ी ले जाएगा। जाओ बच्चों, नशावर चीजें हम कभी भी बच्चों के हाथ में नहीं देंगे। मिट्ठू तोता
کالو کوے کو فون لگاتا ہے۔ کالو اپنے گھونسلے میں سو رہا تھا۔ ارے کیا ہوا طوطے، ایمرجنسی ہے کیا؟ اتنی جلدی میں فون کیا ہے؟ ارے کالو، کیا تمہارے گھر میں تمہاری پتنی کے ماما جی آئے ہیں؟ ارے نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر تمہاری پتنی نے 10 روپے کی بیڑی کیوں منگوائی ہے، وہ بھی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں؟ کیا میری پتنی نے بیڑی منگوائی؟ نہ میں بیڑی پیتا ہوں اور نہ ہی میرے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے۔ ارے تمہاری پتنی نے ہی دیے ہیں 10 روپے، وہ بھی چڑیا کے بیٹے ککو کو۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرو، بچے کے ہاتھ میں بیڑی کا خالی پیکٹ دے دو، بیڑی نہیں دینا، آگے سب کچھ میں ہی دیکھ لوں گا۔ کالو کوا ندی کنارے جا کر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ککو بیڑی کا خالی ڈبہ لے کر گھوری کو دیتا ہے۔ لاؤ جلدی بیڑی لاؤ۔ ارے یہ کیا، یہ تو خالی پیکٹ ہے، کیا 10 روپے کا خالی پیکٹ ملتا ہے؟ گوری آنٹی، انہوں نے مجھے یہی اٹھا کر دیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ اگر بیڑی نہیں پیوں گی تو مر جاؤں گی۔ کیا گوری آنٹی، آپ بیڑی پیتی ہیں؟ ارے چاہتے ہو یا ڈنڈا مارو تمہارے سر میں؟ تبھی کالو گوری کے سامنے آ جاتا ہے۔ گوری، اگر تم بیڑی پیتی تھی تو یہ بات تم مجھ سے بھی شیئر کر سکتی تھی، تم نے کیوں چھپائی مجھ سے یہ بات؟ کالو پتی جی، میں خود ہی یہ گندی عادت چھوڑنا چاہتی تھی، میری ایک پیتی سہیلی نے مجھے بیڑی کی عادت پر لگایا تھا۔ تو پھر اب تک تم بیڑی پیتی رہی، مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ کالو پتی جی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ بیڑی نہیں پیوں گی۔ گوری، بیڑی پینا تمہاری بری عادت ہے، دیکھو اس بری عادت کے پیچھے میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ کالو، کیا آپ سچ بول رہے ہو؟ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا اور آپ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہے۔ ہاں گوری، اس بری عادت سے تمہاری جان چھڑواؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا، اس بیڑی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اس کے بعد ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ کالو گوری سے بہت پیار کرتا تھا، وہ گوری کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ گوری کا 3 مہینے کا علاج ہوتا ہے، اس کے بعد گوری کی بیڑی پینے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ پریوار خوشی خوشی رہنے لگتا ہے۔